Can you put that scripture, please? Genesis 41, उत्पत्ति 41 अध्याय verse 51. वचन 51। So, a young boy called Joseph जवान लड़का है जिसका नाम है यूसुफ, went through unusual difficulties. अस्वाभाविक कठिनाइयों से गुजरा। But I like when people go through difficulties. लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब लोग कठिनाई से गुजरते हैं तो I can see what God can do through a man. मैं देख सकता हूँ कि प्रभु मनुष्य के द्वारा क्या कर सकते Yeah, हैं। one man, एक he मनुष्य can shake the whole thing. वो पूरी चीज को हिला सकता है। Yeah. So if you're going through difficulty, तो यदि आप कठिनाई से गुजर रहे हो don't give up. तो हार मत मानना, Something big is coming. कुछ तो बड़ा आ रहा है। Yeah, something big is coming, really big. कुछ तो सच में बड़ा आ रहा है। Yeah. I think I should say this. मुझे ऐसा लगता है मैंने ये कहना चाहिए, If your little plans are broken, यदि आपकी छोटी योजनाएं टूटी है, praise God. प्रभु की स्तुति हो। God has got bigger and better plans for you. प्रभु के पास आपके लिए बड़ी और बेहतर योजना है। Let me say it again. मुझे फिर से कहने दो, We have this small little castle which we build, हम छोटा महल बनाते हैं and suddenly one storm comes. और अचानक से एक आंधी आती है, The whole thing flies away, सारी चीज उड़ कर निकल जाती है and we are crying. और हम रो रहे हैं। God is saying, don't cry. प्रभु कह रहे हैं, रो मत, Let's journey. आओ यात्रा करते हैं, Let's journey. आओ यात्रा करते Tell your neighbor, it's a journey. Keep walking, keep हैं। walking. अपने पड़ोसी से कहो ये यात्रा है, चलते रहो, Keep walking, keep चलते walking. रहो, Yeah, keep walking. सिर्फ चलते रहो। Okay, so this young boy, तो ये जो जवान लड़का है, yeah, from the age of 17, 17 साल की उम्र से he saw a lot of difficult time. उसने बहुत से कठिन समय देखे। Pain was very normal for him. दर्द उसके लिए बहुत आम बात थी। If I stand on your feet, do you know what you will say? यदि मैं आपके पैर पर पैर रख के खड़ा रहूं तो Not आपको पता है क्या ouch. कहोगे? आप आउच नहीं कहोगे, With ouch, you'll give me a push. आउच के साथ आप मुझे धक्का भी दोगे, But that ouch will tell me you're alive. लेकिन वो आउच मुझे बताएगा कि आप जिंदा हो। Pain, when you respond to it, it tells me you're alive. दर्द जब आप उसको प्रतिक्रिया दिखाते हो उसके कारण, तो हमें मुझे बताता है कि आप जिंदा हो। Okay, so this young boy, a lot of pain. तो ये जवान लड़का बहुत सारा दर्द है, But God raised them up, लेकिन प्रभु ने उसे उठाया, gave him a wife, उसे पत्नी दी, gave him 2 children. 2 बच्चे दिए। So the first son, तो पहला बेटा, he called him a name. उसे एक नाम दिया उसने। You know what was the name? पता है क्या नाम था? Manasseh. मनासे। If you think यदि आप ऐसा सोचते हो, pain will never be there in your life, दर्द आपके जीवन में कभी नहीं होगा, you please come and meet Vaibhav. आप कृपा करके आओ और मुझसे मिलो, He'll pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, You'll go straight to heaven. आप सीधा स्वर्ग जाओगे, Because there's no pain over there. क्योंकि वहाँ कोई दर्द नहीं है, There's no tears over there. वहाँ कोई आंसू नहीं है। Here, यहाँ पर pain is there. दर्द है, Tears is there. आंसू है, But God is with you. लेकिन प्रभु आपके साथ है, It's with you. वो आपके साथ है, It's with you. वो आपके साथ है। Okay. So he called his first son Manasseh. तो उसने अपने पहले बेटे का नाम मनस्से रखा। Manasseh means, you know what? मनस्से का मतलब पता है क्या? From today onwards, आज से आगे I will forget my pain. मैं मेरे दर्द को भूल जाऊंगा। I declare over you, मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूँ, in the name of Jesus, यीशु के नाम में, you will also have your Manasseh. आपके पास भी आपका मनस्से होगा। Means what? इसका अर्थ क्या है? Pain will be there, दर्द होगा, but you will forget the pain. लेकिन आप दर्द भूल जाओगे। Why will you forget the pain? आप दर्द को क्यों भूलोगे? Because God will crowd your life with blessings. क्योंकि प्रभु आपके जीवन में आशीषों की भीड़ लगा देंगे। Yeah. It doesn't say he did not have pain. ऐसा नहीं कहा है कि उसको कोई दर्द नहीं था। It says he will forget. He says, I will forget my pain. वो कहता है कि मैं अपने दर्द को भूल जाऊंगा। Why will you forget, sir? आप क्यों भूलोगे सर? Now God has blessed me with a wife. अभी प्रभु ने मुझे पत्नी के द्वारा आशीषित किया है। I have got 2 children. 2 बच्चे हैं मेरे। I have been lifted. Now I am the prime minister. अभी मुझे ऊपर उठाया गया, मैं प्रधानमंत्री हूँ। I have this authority. मेरे पास ये अधिकार है, If I say something, यदि मैं कुछ कहूंगा it happens. तो होता है। But do I have pain in my life? लेकिन क्या मेरे जीवन में अभी भी दर्द है? Yes, sir. हाँ है। What is your pain, brother? तुम्हारा दर्द क्या है भाई? Oh, I have not seen my father for so many years. बहुत साल से मैंने अपने पिताजी को नहीं देखा I है। have not seen my younger brother Benjamin for so many years. मेरे छोटे भाई बेंजामिन को मैंने बहुत सालों से नहीं देखा है। Is there pain in your life, brother? भाई आपके जीवन में दर्द है क्या? Yes. हाँ है, But thank God, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, He has crowded my life with so many blessings.
उन्होंने मेरे जीवन में इतने आशीषों की भीड़ लगा दी है that I have forgotten my pain. कि मैं मेरे दर्द को भूल चुका हूँ। Your time is coming. आपका समय आ रहा है, Yeah, your time is coming. आपका समय आ रहा है। Yeah. Next verse, very important. अगला वचन बहुत महत्वपूर्ण। Next son, he called that son Ephraim. दूसरे बेटे को इफ्राइम कहा। That means इसका अर्थ है I suffered a lot, मैंने बहुत सताव सहा, but God gave me success. लेकिन प्रभु ने मुझे सफलता दी है। Is the God that you serve the same God of Joseph? क्या जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हो यूसुफ का जो परमेश्वर था वही ये परमेश्वर है? Yeah. हाँ, Yeah, he doesn't change. वो बदलते नहीं है। See, because you have pain doesn't mean success will not come. आपके जीवन में दर्द है इसका अर्थ ऐसा नहीं कि सफलता नहीं आएगी। नहीं, दर्द रहेगा लेकिन उसके साथ सफलता रहेगा यीशु के नाम। आमेन, आमेन। Ephraim means fruitfulness. इफ्राइम का मतलब है फलवंतता। Yeah. God will make you fruitful. प्रभु आपको फलवंत बनाएंगे। तू भूल जाएगा तेरे दुखों को। आमेन। तू बोलेगा अरे यार मेरा दुख है, लेकिन मेरे दुखों से मेरा जो प्रभु ने मेरे जीवन को आशीषों से जो क्राउड किया है वो बड़ा हो गया है। It has become bigger and it has become better in the name of Jesus. वो बड़ा और बेहतर हो गया यीशु के नाम में। So you may say, Pastor, what are you going to teach us today? आप कहोगे पास्टर आज आप हमें क्या सिखाने वाले हैं? Simple. बहुत आसान। God is going to crowd your life with blessing. प्रभु आपके जीवन में आशीषों की भीड़ लगाने वाले हैं। Yeah. Okay. Now, how blessing comes? Can you put that chart which I gave you? आशीष कैसे आता है? So I'll give you 7 quick. But this is not what I'm going to teach you. I want to teach you something else. 7 बातें तुरंत बताऊंगा। मैं आपको ये नहीं सिखाने वाला, कुछ और सिखाना चाहता हूँ। Number 1, पहला, it comes from God. वो प्रभु की ओर से आता है। There will be times in your life God will just say, I bless you. आपके जीवन में ऐसे समय होंगे जहां पर प्रभु खुद कहेंगे मैं तुझे आशीष देता हूँ, I bless you. मैं तुझे आशीष देता I हूँ, bless you. मैं तुझे आशीष देता I हूँ, bless you. मैं तुझे आशीष देता I हूँ, bless you. मैं तुझे आशीष देता हूँ। Birthdays, you should ask a blessing from God. जन्मदिन के दिन आपने प्रभु से आशीष मांगना है। Anniversary, ask a blessing from God. शादी की सालगिरह के दिन आपने प्रभु से आशीष मांगना है। And please give a thanks offering to God every time you celebrate your birthday and your anniversary. और हर समय जब आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह आप मनाते हो तो प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। Yeah. Number 2. दूसरा, Okay. What's number 2? दूसरा, Parents. माता पिता। Wow. Parental blessing. माता पिता का आशीष। Yeah. If they open their mouth and say, यदि वो अपना मुंह खोलकर कह दे it will go well with you. तेरा भला होगा, It will go well with you. तो जरूर आपका भला होगा। Never forget your parents. कभी भी अपने माता पिता को भूलना मत। Don't insult your parents. अपने माता पिता का अपमान मत करना। Don't raise your hands on your parents. अपना हाथ अपने माता पिता पर उठाना नहीं। Yeah. You don't have anything to say, don't say. यदि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो बोलो भी मत। Just keep quiet. चुप रहो। Take their blessing. उनके आशीष को लो। उनका मुंह खोलकर अगर उन्होंने बोला ना तुझ्या बरोबर चांगलं होणार म्हणजे चांगलंच होणार आहे येशूच्या नावाने. उन्होंने यदि अपना मुंह खोल के बोला तेरा भला होगा तो भला ही होगा। Number 3. तीसरा, Wow, spiritual leaders. आत्मिक अगुवे, Yeah. They can bless you. वो आपको आशीष दे सकते हैं। Okay, let me tell you the mystery of blessing. आशीष का रहस्य आपको बताने दो। One day Jesus said, when you go to a home, एक दिन यीशु ने कहा जब तुम किसी के घर जाते हो, if they are open, यदि वो खुले हुए, speak shalom over them. वहां पर उनके ऊपर शालोम बोलो। But, लेकिन that blessing वो आशीष will only stand over that family if they honor the person. वो आशीष उस परिवार के ऊपर तभी ठहरा रहेगा जब वो उस व्यक्ति का आदर करेंगे तब। Amen. Come on. I am not afraid to bless you. मैं डरता नहीं हूं आपको आशीष देने से, But लेकिन whether it sticks on you, it depends on you. आपके ऊपर वो चिपकता है कि नहीं वो आप पर निर्भर है। It's up to you. वो आपके ऊपर है। I don't know your heart. मुझे आपका दिल नहीं मालूम, You know your heart. आप आपका दिल जानते हो। Number 4. चौथा नंबर, Yeah, you can bless one another. आप एक दूसरे को आशीष दे सकते हो। Bible says, don't curse, but bless. बाइबल कहते श्राप मत दो लेकिन आशीष दो। Yeah. So this habit of God bless you, तो ये जो आदत प्रभु तुम्हें आशीष दे, it's a good habit. ये अच्छी आदत है। Yeah. If you go to Israel, यदि आप इजराइल जाते हो, you know, when they
We normally say goodbye when we are parting ways. हम आम तौर पर जब जाते रहते तो हम कहते गुड बाय, They don't say goodbye. वो गुड बाय नहीं कहते, They say God bless you. वो कहते प्रभु तुझे आशीष दे। Learn it, learn it. सीखो सीखो Yeah, learn it. सीखो। When your friend is going, जब आपका दोस्त जा रहा है say God bless you. उसे कहो प्रभु तुझे आशीष दे। There is power in your words. आपके शब्दों में सामर्थ है, There is life in your words. आपके शब्दों में जीवन है। Number 5 is obeying God. 5वां नंबर है प्रभु का आज्ञा पालन करना। This is beautiful. ये बहुत सुंदर है। How many of you know Psalm chapter 1 verse 1? कितने लोग भजन संहिता पहला अध्याय पहला वचन जानते हो? Yeah. Blessed is the man आशीषित है वो व्यक्ति who does not walk. जो नहीं चलता, Yeah, and then it says who does not stand, और जो नहीं खड़ा रहता, then doesn't sit, जो नहीं बैठता, but he meditates on the word of God day and night. लेकिन वो दिन रात प्रभु के वचन पर मनन करते रहता है। There is a blessing because of obedience. आज्ञा पालन के कारण उसमें आशीष है। So every time you say yes to God, तो हर समय जब आप प्रभु को हाँ कहते हो, there is a blessing coming on you. आपके ऊपर आशीष आ रहा होता है। We'll talk on another day. Number 6. छठा नंबर, Wow. When you pray, जब आप प्रार्थना करते हो blessing will come. आशीष आएगा। How many of you know Jabez? Yeah, this is about Jabez. कितने लोग जाबेस को जानते हो? The word Jabez means pain. जाबेस शब्द का मतलब ही है दर्द, उसके माँ ने उसका नाम रखा दर्द. And he was in a lot of pain. और वो बहुत दर्द में था। He did the best thing. उसने सबसे उत्तम बात He की, turned to God. वो प्रभु की ओर मुड़ा And he prayed. और उसने प्रार्थना की। You know what he prayed? पता है क्या प्रार्थना की? Oh Lord, bless me. हे प्रभु मुझे आशीष दो। Is there somebody who will lift your hand and say to God, God, bless me, oh क्या God. कोई ऐसा है जो अपना हाथ उठाकर कहेगा प्रभु मुझे आशीष दो प्रभु, God, bless me, oh God. प्रभु मुझे आशीष दो प्रभु। And he said, Lord, और उसने कहा प्रभु you know, I've got small land. मेरी छोटी सी जमीन है, Why don't you expand it? क्यों ना आप उसे फैला दो प्रभु। I pray. मैं प्रार्थना करता Your हूँ, one room kitchen will become 1 BHK. आपका 1 रूम किचन का फ्लैट 1 BHK बन I जाए। pray your 1 BHK will become 2 BHK. मैं प्रार्थना करता हूँ आपका 1 BHK 2 BHK में बदल And जाए। if you need a 3 BHK, may you get a 3 BHK in Jesus' यदि name. आपको 3 BHK चाहिए तो आपको 3 BHK मिल जाए यीशु के नाम में। And then he said, फिर आगे उसने कहा Lord, be with me. प्रभु मेरे साथ रहना, You be with me. आप मेरे साथ रहना। Anybody is there, not there, but you don't go anywhere, huh? कोई है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कहीं मत जाना। Yeah. You don't go anywhere. आप कहीं मत जाना। And the last one he said, और आखिरी बात उसने कही, Lord, keep me away from pain. प्रभु मुझे दर्द से संभाल के रखना। बहुत हो गया दर्द, अभी ऐड मत करना. अभी और मत जोड़ना उसमें, थोड़ा एक एक कम करो, लेकिन ऐड मत करना. एक एक कम करो लेकिन उसमें और जोड़ना मत। और दूसरी बात, प्रभु दूसरों को मैं दुख ना दूं. आमीन। वाओ। The greatest blessing in life is when you don't become a pain to other people. सबसे बड़ा आशीष जीवन में तब होता है जब आप दूसरे लोगों के लिए दर्द का कारण नहीं बनते But तब। you become a blessing to people. लेकिन आप दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हो। Number 7. 7वां, When does blessing come? आशीष कब आता है? When you read the Bible. जब आप बाइबल पढ़ते हो, You hear the word of God प्रभु का वचन आप सुनते हो and you obey. और आप आज्ञा पालन It करते हो, comes on you. वो आपके ऊपर आता है। Right now you are being blessed. इस वक्त आप आशीषित हो रहे हो। Why? क्यों? Because you are hearing the word of God. क्योंकि आप प्रभु का वचन सुन रहे हो। And your mind is, your heart is saying, oh, I'm going to do what God is saying. आपका मन, आपका हृदय कह रहा है मैं वो करने वाला जो प्रभु कह रहे हैं। Yeah. So 2 blessing I'm going to try to push in your life. तो 2 आशीष आपके जीवन में ढकेलने की मैं कोशिश करूंगा। ये आएगा ना, ये 2 मैं तुझे बता रहा हूं. दुष्ट आत्माएं तुझसे कितना किलोमीटर दूर करूं उसको? किलोमीटर नहीं करते, चलो 10 फीट बस हो गया. 10 feet is okay. 10 फीट ठीक है। They may come, but they cannot do anything. वो आएंगे शायद, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे। John 14:30, Jesus said, the enemy is coming. यूहन्ना 14 अध्याय वचन 30 में यीशु ने कहा शत्रु आ रहा है, But लेकिन he has nothing in my life. मेरे जीवन में उसका कुछ भी नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकता. वो तेरे आगे पीछे घूम सकता है, सूंघ सकता है. Can make a lot of noise, बहुत सारा आवाज कर सकता है, but he knows. लेकिन वो जानता He है cannot do anything. वो कुछ नहीं कर सकता। So I'm going to give you 2 blessings. तो मैं आपको 2 आशीष देने वाला You हूं। are ready? तैयार हो? Wow. Matthew 5:7.
मत्ती 5:7। Blessed are the merciful. आशीषित है जो दया दिखाते हैं वो लोग, They will stay in God's mercy. वो प्रभु की दया में बने रहेंगे। Now let me talk to you about a mercy. अभी अभी दया के बारे में आपसे बात करने दो। बाजू वाले को बोलना, तूने इतना दया पिया है। बाजू वाले को बोलना, तूने बोलो। इतना दया पिया है, या बोलो बोलो, इतना दया पिया है। इतना दया पिया है, You have drank so much. आपने इतना पिया है। I pray you will be drunk with mercy. मैं प्रार्थना करता हूं आप दया पीकर मतवाले हो जाओ। या मत वाले हो जाओ। You know when you say mercy, आपको पता है जब आप कहते हो दया, what are you telling God? आप प्रभु से क्या कह रहे हो? God, I am not reaching your standard. प्रभु मैं आपके स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। आपका जो स्तर है ना, उतना नहीं होता। कितना भी मैं ये जम कर टच करने के लिए करना, ये ऐसा ही है हमारा हालत। प्रभु का स्टैंडर्ड ये, प्रभु का स्तर वो है। हम लोग ना बाद में थकने के बाद प्रभु बोल रहा है, मैं कुछ करूं क्या तेरे लिए? मैं कुछ कर सकता हूं तेरे लिए। What is mercy? दया मतलब क्या? God, प्रभु give me what I don't deserve. जिस चीज के मैं लायक नहीं हूं वो आप मुझे दो। Now our lives are filled with mistakes. हमारे जो जीवन है पूरी तरह गलतियों से भरे हुए हैं। So when we are filled with mistakes तो जब हम गलतियों से भरे होते हैं and we come to God, और हम प्रभु के पास आते you हैं, know how we come? आपको पता है हम कैसे आते Let हैं? me show you how we come. आपको दिखाने दो हम कैसे आते हैं। Psalm 51 verse 1. भजन संहिता 51 में 1 This is how we come. इस प्रकार हम आते हैं, हे देवा, हे प्रभु माझ्यावर दया कर. मुझ पे दया करो। Actually it's too good. वो बहुत अच्छे हैं हकीकत में, It's too good. वो बहुत ज्यादा अच्छे Okay. हैं। So can you put that? So बेचारा David, तो बेचारा दाऊद, he slipped so bad. वो इतना बुरी तरह फिसला। आपको पता है ना स्टोरी, ये हमारी भी स्टोरी है। वो लड़की के मामले में फंसला, हम कुछ अलग ही है। We are all same category only. हम सब सेम कैटेगरी में ही है। He prayed like this, Lord, उसने ऐसे प्रार्थना की, have प्रभु mercy on me. मुझ पे दया करो। Let me define. मुझे आपको समझाने दो। What was he saying to God? वो प्रभु से क्या कह रहा था? Lord, प्रभु I deserve death, मैं मृत्यु के लायक हूँ, but लेकिन please कृपा करके don't give me what I deserve. जिसके मैं लायक हूँ वो चीज आप मुझे मत दो। The day a man comes to this place, जिस दिन एक व्यक्ति इस स्थान पर आता है his life will change. उसका जीवन बदल जाएगा। Ezekiel Ezekiel. 18 verse 20. यहेजकेल 18 में 20, A soul which sins एक प्राण जो पाप करता है shall surely die. वो निश्चित रूप से मरेगा। What is mercy? दया क्या है? God, प्रभु I deserve death, मैं मृत्यु के लायक हूँ, but लेकिन please कृपा करके don't give me death. मुझे मृत्यु मत दो। Lamentation 2:22. विलाप गीत 2 में 22, Yeah. Because of the mercies of God, प्रभु की दयाओं के कारण you have not died. तुम मरे नहीं हो। Because of the mercies of God, प्रभु की दयाओं के कारण you have not died. तुम मरे नहीं हो। If you count your life now, यदि आपके जीवन को आप गिनोगे ना, there are a lot of mistakes. बहुत सारी गलतियां हैं उसमें, Plenty to be shot. बहुत सारी की निशाना भी लगा सकते हैं। निशाना नहीं बेटा, shot, मारना. But God still says, लेकिन प्रभु फिर भी कहते हैं, because I am merciful, क्योंकि मैं दयालु हूँ इसलिए you will not die. तू मरेगा नहीं, 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 You will not तू die. मरेगा नहीं, But you will live. लेकिन तू जिएगा। Now let me tell you a mystery of mercy. अभी दया का रहस्य आपको बताने दो। When God has mercy, जब प्रभु दया दिखाते हैं He will always correct you. वो हमेशा आपको सुधारेंगे भी। Mercy doesn't mean that He will not correct you. दया का मतलब ऐसा नहीं कि वो आपको सुधारेंगे नहीं, Mercy means दया का मतलब He will correct you. वो आपको सुधारेंगे। Now listen, अभी सुनो, He will not judge you. वो आपका न्याय नहीं करेंगे, He'll correct you. वो आपको सुधारेंगे। Now listen very strongly. अभी और बहुत ध्यान से सुनना,
He will correct you वो आपको सुधारेंगे because you are his child. क्योंकि आप उनके बच्चे हो, इसीलिए। He'll not kill you. वो आपको मार नहीं डालेंगे। That's why Hebrews chapter 12 verse 6 says, इसीलिए इब्रानियों 12 अध्याय वचन 6 कहता है, God loves you. प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, That's why he corrects you. इसीलिए आपको सुधारते हो। Good news. Let me give you a flashing news right now. आपको इस वक्त खुशखबर, बहुत अच्छी खुशखबर देने दो। Nobody likes correction. किसी को सुधार अच्छा नहीं लगता है। I gave you flashing news right now. मैंने अभी आपको ताजा खबर दी है। Nobody likes correction. किसी को सुधार अच्छा नहीं लगता है, It's very painful. बहुत दर्दनाक होता है। But लेकिन close your eyes. अपनी आंखें बंद कर लो, Just drink it. उसे पी लो। Anybody knows Sachin Tendulkar? कोई सचिन तेंदुलकर को जानता है यहाँ पर? The first test match when he played, पहली टेस्ट मैच जब वो खेल रहे थे, how many runs did he score? कितने रन उन्होंने स्कोर किए? He didn't know where the ball came. उन्हें पता नहीं था बॉल कहां से आया। He went ahead. वो आगे गए, Behind, पीछे आवाज आया सिर्फ, सिर्फ आवाज आया। बैट का और बॉल का नहीं, स्टंप का और बॉल का आया. बैट का बॉल का नहीं, स्टंप का और बॉल का आवाज आया। Then he took his bat. फिर उन्होंने अपनी बैट ली। But that evening, लेकिन उस शाम को he went to his coach, वो अपने कोच के पास गए, whose name is Ramakant Achrekar, जिनका नाम है रमाकांत अचरेकर, and he asked him, और उन्होंने उनसे पूछा, Sir, सर what was my mistake? मेरी गलती क्या थी? That whole night, वो पूरी रात he taught him उन्होंने उसे सिखाया what was his mistake. उनकी गलती क्या थी। Next innings, अगली पारी में century. शतक मारा। Okay, why did I tell you about Sachin Tendulkar? मैंने आपको सचिन तेंदुलकर के बारे में क्यों बताया? Whoever doesn't take correction, जो कोई भी सुधार नहीं लेता है, he will keep making the same mistakes again and again and again and again and again and again and again, and he will be labeled as a failure. जो कोई भी सुधार नहीं लेता वो बार बार एक ही गलती दोहराते रहेगा, दोहराते रहेगा, दोहराते रहेगा, और उसके ऊपर एक लेबल लग जाएगा कि तो असफल व्यक्ति है। Even today, आज भी Sachin Tendulkar goes and pays respect to his coach. सचिन तेंदुलकर जाते हैं और अपने जो कोच है उनको जो है आदर सम्मान दिखाते हैं। Why? क्यों? Because he knows क्योंकि वो जानते हैं this man, ये जो व्यक्ति है he could correct his failure. वो उनके असफलता को सुधार सकते हैं। There is one person who can correct your failure. एक व्यक्ति जो आपके असफलता को सुधार सकते हैं, That's your heavenly Father. वो आपके स्वर्गीय पिता है। Listen to him. उनकी सुनो, Listen to him. उनकी सुनो, Listen to him. उनकी सुनो। जादू नहीं होने वाला है, करेक्शन लो. जादू नहीं होने वाला, सुधार लो। जादू नहीं होने वाला, मैं वापस बोल रहा हूं, सुधार लो. मैं कह रहा हूं वापस, जादू नहीं होने वाला, सुधार लो। और जब सुधार आता है ना तभी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाद में जब फेमस हो जाओगे आप, सचिन तेंदुलकर देखो जिधर भी जाते हैं. लेकिन इफ यू वुडंट हैव टेकन करेक्शन, लेकिन यदि उन्होंने सुधार नहीं लिया होता, अगला इनिंग में भी वैसा ही बॉल डाला था उसके लिए, पहला ही बॉल वैसा, सेम बॉल, वैसा ही बॉल यहां से घूम रहा है, फिर सट करके, इसको पता है कैसा आने वाला है, क्या होने वाला है. वैसा ही अगर प्रभु के बातें सुन लोगे ना, देयर इज नो एरो ऑफ द एनिमी व्हिच कैन पियर्स थ्रू. तो कोई भी शत्रु का तीर आपको छेद के निकल नहीं सकता। योर डिफेंस विल बी स्ट्रांग. आपका बचाव मजबूत होगा। योर शील्ड ऑफ फेथ विल बी स्ट्रांग. आपकी विश्वास की ढाल मजबूत होगी। नहीं तो ऐसे ही बोल गया, ये कहाँ है वो आदमी? नहीं, वो रॉकेट था पास्टर, रॉकेट. यू नो रॉकेट? सम पीपल आर लाइक रॉकेट. कुछ लोग रॉकेट के जैसे ऊपर जाते हैं। देख 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 बोलना, देख 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 देख, देख, फिर देख, सडनली ना गिर रहा है, गिर रहा है. वी आर नॉट रॉकेट, हम रॉकेट नहीं है, वी आर जंबो जेट. हम जंबो जेट है, लोडेड, भरे हुए, फुल लोड. पूरा हुआ भरा हुआ.
take off. वो उड़ान भरता है। At the right place you will land in the name of Jesus. सही स्थान पर आप उतरोगे यीशु के नाम। Now let me talk to you about two spirits who fight against mercy. अभी मुझे आपको बताने दो, दो आत्माएं जो दया के खिलाफ लड़ती है उनके बारे में, And we are going to take authority और हम अधिकार लेने वाले हैं and we are going to kick them out of our lives. और हमारे जीवन से लात मार के उन्हें बाहर निकालने वाले। Okay, the first one, the first spirit पहली आत्मा is called unforgiveness and bitterness. उसे कहते हैं अक्षमा और कड़वाहट की आत्मा। It's a spirit ये आत्मा है and it will fight you so that you don't stay in mercy. और ये लड़ेगी आपके साथ ताकि आप दया में न रहो। Yeah. It'll make you a failure. वो आपको असफल बना देगी, Yeah, it will make you frustrated. वो आपको पूरी तरह हताश कर देगी। But we have identified our enemy now. लेकिन अभी अब हमारे शत्रु को हम पहचान गए हैं। Yeah, ये रे problem ये प्रॉब्लम है ये। No problem. Today, by the grace of God and with the help of the Holy Spirit, we are going to shoot the arrow of God's word straight into his head in Jesus' name. आज हम परमेश्वर की मदद से, पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर की आत्मा का तीर उसके ऊपर छोड़ने वाले यीशु के नाम में। Matthew 18, मत्ती 18 verse 33. Okay, वचन 33। small story. छोटी सी कहानी है। So Jesus is talking about the kingdom of God. तो यीशु परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर Be रहे हैं। with me. So there's a king, तो एक राजा है, many servants. बहुत सारे सेवक हैं। One servant took I don't know how many lakhs of rupees, एक सेवक ने पता नहीं कितने लाख रुपए लिए थे, but he could not pay back. लेकिन वो उसे चुका नहीं पाया। So one day king said, call him, call him. तो एक दिन राजा ने बोला उसे बुलाओ, Bring my money back. मेरे पैसे वापस दे। He said, please have mercy on me. उसने कहा कृपा करके मुझ पे दया करो। So anyway, king said, okay, जाने दो, जाने दो. राजा ने कहा जाने दो उसे। What freedom it must be now. कितने आजादी होगी ना वो। And he's coming out. और वो बाहर आ रहा है, As he is coming out, जैसे वो बाहर आ रहा है he sees another servant वो दूसरे सेवक को देखता who है has only taken 10,000 rupees. जिसने सिर्फ उससे 10,000 लिए होते हैं। पकड़ा उसको, मेरे पैसे किधर है? तो भीख मांग रहा, बोला प्लीज हैव मर्सी. कृपा करके मुझ पे दया करो। He puts him in a prison. उसे बंदीगृह में डालता है वो। King hears. राजा को सुनाई देता है वो। He calls the man, come here. वो उस व्यक्ति को बुलाते हैं, यहाँ पे आ, This is it. यहाँ पर लिखा है। Yeah. Compassion means mercy, okay? That word compassion in Greek means mercy. वो तरस जो शब्द है यूनानी भाषा में है दया। I showed you mercy. मैंने तुझ पर दया दिखाई, Then why you didn't show? तो तूने क्यों नहीं दया दिखाई? I showed you mercy, son. बेटे मैंने तुझ पे दया दिखाई, Why you didn't do it? तूने भी क्यों नहीं किया वैसे? Unforgiveness, अक्षमा, bitterness. कड़वाहट, They will not allow you to stay in mercy. वो आपको दया में रहने के लिए इजाजत नहीं देंगे। If you read the next verse, यदि आप अगला वचन पढ़ोगे, he was thrown in a prison उसे बंदीगृह में डाल दिया गया to be tormented. सताव सहने के लिए। खुद के लिए दया और दूसरों के लिए मृत्यु, ऐसा नहीं होता है। यस, प्रभु कह रहा है ये चेंज हो रहा है। आमीन, आप भी दया लो, आप दया बांटते जाओ यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। The second demon, दूसरी दुष्ट आत्मा yeah, which attacks mercy, जो दया पर हमला करती है, is called self-righteousness. उसे कहते हैं खुद की धार्मिकता। And I pray today और मैं प्रार्थना करता हूँ आज it will be crushed in your life in Jesus' name. आपके जीवन में वो कुचला जाए यीशु के नाम में। You know when you go out, na, you mingle with people, आपको पता है जब आप बाहर जाते हो लोगों से मिलते जुलते हो, they should not look at you and say, wow, religious man has come. उन्होंने आपकी ओर देखकर ऐसा नहीं करना चाहिए धार्मिक व्यक्ति आया। When Jesus used to walk in the street, जब यीशु रास्तों पर चला करते थे, they did not look at him as a religious man. उन्होंने उन्हें धार्मिक व्यक्ति के रूप में नहीं देखा, They looked at him as a man who helped people. उन्होंने उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जिसने लोगों की मदद की। Is there somebody who will help us? Another person? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पर जो दूसरे व्यक्ति की मदद करेगा? Yeah. May God bless you. और तो प्रभु आपको आशीष दे। Self-righteousness. Okay, let खुद की me. धार्मिकता। Luke chapter 18, verse 9. लूका 18 में 9। Yeah. Okay, so there is a Pharisee. एक फरीसी है, So he is praying. तो वो प्रार्थना कर रहा है। नहीं, वो बाद में बताता हूँ. Okay. Who is the Pharisee? फरीसी कौन है? They are confident in their own righteousness. वो अपनी खुद की धार्मिकता में आत्मविश्वास रखते हैं। ये बिलीवर लोग हैं कुछ कुछ, लेकिन अपने चर्च में नहीं है। तो आमेन नहीं बोल रहा है। आप यहाँ रहोगे ना, मेरे साथ बहुत तकलीफ होगा आपका। आई एम टेलिंग यू। मैं आपको कह रहा हूँ,
अगर आप ऐसे हो तो ये चर्च में आपको बहुत तकलीफ होने वाला है। यहां पर हम लोग पाप को ऊपर नहीं आने देते, लेकिन पापियों को हम मदद करते हैं, याद में रखें। Amen, amen. So this man and I will not go, will not gel. We are not close pal. Hello, how are you? तो ये व्यक्ति और मैं हम घुल मिल नहीं सकते। Yeah, will not. Okay. नहीं होगा। So sometimes your arithmetic may go wild. You may say, what is this Pastor Vijay Nadar? कभी कभी आप सोचने लग जाओगे पास्टर विजय नाडर क्या है, क्या चीज है। अब भी बताता हूँ। Self righteous people, खुद में धर्मी लोग through their work, उनके काम के द्वारा they try to make God accept them. वो कोशिश करते कि प्रभु उन्हें ग्रहण करे, But we are accepted लेकिन हम ग्रहण किए गए हैं because of Jesus. यीशु के कारण। Ephesians 1:6. इफिसियों 1:6। Then these people, उसके बाद ये लोग when they look at another believer, जब वो दूसरे विश्वासी को देखते हैं, अनबिलीवर का तो छोड़ दे, वो लोग तो छोड़ेंगे नहीं उसको, अविश्वासी को तो छोड़ेंगे ही नहीं, वो तो उसका खीमा बना के सबको खाना भी बांट देंगे। Another believer, दूसरा विश्वासी they will look at him उसी ओर देखेंगे and they will look down. और उसको नीचा देखेंगे। वो ये फैरिसी है, मैं बिलीवर हूं। God never looks down. प्रभु कभी भी नीचा नहीं समझते। He is the lifter of my head. वो मेरे सिर को ऊंचा करने वाले हैं। So what is the problem of self-righteous people? तो खुद में धर्मी जो लोग होते हैं उनकी समस्या क्या होती है? Through their work. उनके काम के द्वारा। Now after this he is praying, okay? उसके बाद वो प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पे दो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, एक स्वयं के जो धर्मी लोग है वो, और दूसरा एक a sinner. एक पापी। So he prays. Hey, lift your hand. तो वो प्रार्थना करता है And he says, और वो कहता है 5 prayer he is making. 5 प्रार्थनाएं करता है। It's a thanksgiving prayer. ये धन्यवाद की प्रार्थना है। First he says, पहला वो कहता है God, प्रभु I am not a sinner मैं तो पापी नहीं हूँ, like everyone else. बाकी सबके जैसा मैं पापी नहीं हूँ, I don't cheat. मैं तो धोखा नहीं देता, I don't sin. मैं पाप नहीं करता, I don't commit adultery. मैं व्यभिचार नहीं करता। और ये जो विजय नाडर जो टैक्स कलेक्टर है, इसके जैसा तो मैं बिल्कुल नहीं हूं। चर्च में ऐसा ही होता है। घर में बैठ के क्या बात करते हो सोचो। हाँ, नेक्स्ट वर्स। अगला वचन, मैं कितने 2 बार उपवास करता हूँ, मैं 2 बार उपवास करता हूँ दशवांश देता हूँ। और मैं अपना दशवांश भी देता हूँ। ये बाजू वाला, और ये बाजू वाला ये कुछ नहीं करता। Here we encourage through the word of God with respect to giving. यहाँ पर देने के बारे में हम प्रभु के वचन से उत्साहित करते हैं। But I have never asked anybody, did you give tithe or not? लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं पूछा तुमने दशमांश दिया है कि नहीं अपना, Never. कभी नहीं पूछा। Why should I ask? मैं क्यों पूछूं? It's between you and your God, na? ये आपके और आपके प्रभु के बीच की बात है। But if you are too close to me, very close, लेकिन यदि आप मेरे बहुत करीब हो and every time you say ये struggle हो गया, वो struggle हो गया, ये struggle हो गया, और हर समय आप कहते हो ये संघर्ष हो रहा है, वो संघर्ष हो रहा है, ये हो रहा है, तो मैं इधर आना बाजू। तो मैं कहूंगा इधर आ बाजू। अच्छा, तू प्रभु को आदर देता है तेरे पैसों में? मैं पूछूंगा तू अपने पैसों में प्रभु को आदर देता है क्या? It's very simple. बहुत आसान है। Whoever honors God in their money will give their tithe. It's in the Bible. जो कोई भी अपने पैसों में प्रभु को आदर देता है वो अपना दशमांश जरूर देगा, ये बाइबल में लिखा है। Yeah. I never come and ask you, are you fasting or not? मैं आपको कभी आके पूछता नहीं तुम उपवास कर रहे हो कि नहीं, But I will encourage you, please fast. लेकिन मैं आपको उत्साहित करूंगा कृपा करके उपवास करो। Yeah. And now, me sinner. अभी मैं पापी, Lord, प्रभु I've done so many mistakes. मैंने बहुत सी गलतियां की है, Please forgive me. कृपा करके मुझे क्षमा करो। Please आप जाके मिस्टेक मत करो। हाँ? आप जाके गलतियां मत करो, Please don't. कृपा करके मत करना, It's very dangerous. बहुत खतरनाक है वो, Very dangerous. बहुत खतरनाक। Then the Bible says, उसके बाद बाइबल कहती है वचन 19, verse 14, वचन 14, whoever exalts themselves जो कोई भी अपने आप को ऊंचा उठाता है will be humbled. उसे नम्र किया जाएगा। Self-righteous people, खुद में जो धर्मी लोग होते हैं they are proud. वो घमंडी होते हैं, कोई आमेन नहीं बोल रहा है? They are proud. वो घमंडी होते हैं And they will be humbled. और उनको जो है नम्र किया जाएगा। Okay, if I have to pray, यदि मुझे प्रार्थना करनी है okay, how do I thank God? तो मैं प्रभु को धन्यवाद कैसे दूं? Lord, प्रभु thank you. धन्यवाद। Yesterday, कल के दिन
I had a lot of opportunity to sin, बहुत सारे मौके आए मेरे जीवन में पाप करने के लिए, but लेकिन thank you. धन्यवाद, You helped me. आपने मेरी मदद की है। How you thank God आप प्रभु को धन्यवाद कैसे देते हो, is very important. वो बहुत महत्व का है। Paul said, पौलुस ने कहा, whatever I am, जो कुछ भी मैं हूँ, I am by the grace of God, the help of God. वो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु के मदद से हो। And all God's people say, और सारे प्रभु के लोग कहे Amen. आमेन। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ the mercy of God will come upon you. परमेश्वर की दया आपके ऊपर आ जाए। Yeah. Stay in the mercy of God. प्रभु की दया में रहो Yeah. And God will bless you. और प्रभु आपको आशीष देंगे।